The final, of course, we go back to the Constitution. This, our favorite, just like the production system is a weapon, just like Jati Jangarna is a weapon of transformation, this is what the entire architecture is built on. I remember before the elections, all of you were saying 400 par, and you were saying you would change this. And then I was glad to see that the Prime Minister walked in and then was forced to bow his head in front of the Constitution. It was a moment of pride for all Congress people that we had explained to the Prime Minister and to the whole country that no force will dare touch this. Yeah. I know that the RSS has never accepted this. Mohan Bhagwatji has said that India didn't get independence in 1947. He has said that this constitution is meaningless. I know that that is at your heart. We will never let your dream come true. This constitution is going to rule India always. Now, एक मिनट आप प्रतिपक्ष के नेता हैं, मेरा आपसे आग्रह है कि जो विषय आप रखें वह तथ्यों पर आधार पर रखें, तो उचित होगा। मैंने आपको पहले भी कहा, और जो सदन के सदस्य नहीं हैं उनकी चर्चा न करें। बताता हूं सर, मोहन भागवत आप नियम प्रक्रियाओं की पालन करें, आपसे अपेक्षा। सर, मोहन भागवत जी ने स्टेटमेंट दिया। मोहन भागवत का स्टेटमेंट Speaker sir, Mohan Bhagwat ji made a statement saying that India did not receive independence in 1947. It received independence when the Ram Mandir was inaugurated. We will place that on the table. Now, sir, I would like to mention one small thing, but very important thing. Speaker sir, this constitution is supported by this constitution is supported by the vote of our people. Without the secure vote of the Indian people, this constitution means nothing. Now I want to bring to the notice of this House some data, some information about the Maharashtra election. Very simple stuff. Speaker sir, between the Lok Sabha election, which the India Alliance won, and the Vidhan Sabha election, the voting population of Himachal Pradesh was added to the voting roll of Maharashtra. Meaning the entire population of Himachal Pradesh was added to the voter rolls of Maharashtra. Please understand what I am saying. In Lok Sabha, the difference between Lok Sabha and Vidhan Sabha was the population of Himachal. The entire population. Almost 70 lakh new voters suddenly arrived between Lok Sabha and Vidhan Sabha. Now, the most interesting part, and the Prime Minister is not looking at me. The most interesting part, मुंह नीचे कर लिया सडनली। दुर्भाग्य है कि आज इतना बचपना किया हमारे अपोजिशन पार्टी के लीडर ने कि राष्ट्रपति जी, प्रधानमंत्री जी उनको मुख दर्शन नहीं करते हैं, ऐसा आरोप लगाया। क्या बकवास है सर, प्रधानमंत्री क्यों उनका मुख दर्शन करेंगे? ये तो दर्शन करने लायक नहीं है। लोकतंत्र के हत्यारा जिन्होंने संविधान को लेकर के संविधान का अपमान करते आए हैं, उनका मुख दर्शन क्यों करेंगे माननीय प्रधानमंत्री जी? देश के लिए समर्पित प्राण माननीय प्रधानमंत्री जी ऐसा लोगों का मुख दर्शन क्यों करेंगे? सर, ये 1975 में जो आज संविधान को पकड़ करके चलते हैं, वो उस खानदानी से वो विलन करते हैं जिस खानदानी ने
हमारा संविधान का अपमान किया था। मान्यवर सुप्रीम कोर्ट का राय का उल्लंघन करके निर्लज्जता पूर्वक संविधान का संशोधन किया और अपना कुर्सी बचाने के लिए ही किया है, बार बार किया है, और उनके पिताजी भी कई बार किया है। ऐसा खंडन से ऐसा व्यक्ति को मुख दर्शन करना बहुत जरूरी नहीं है। इमरजेंसी जारी करके गणतंत्र का आत्मा को हत्या किया है उन्होंने। सर, इसलिए राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री जी का अपमान करने वाले, हमारे संवैधानिक मुखियों का अपमान करने वाले लोगों का मुख दर्शन करना बहुत तो जरूरी नहीं है। सर, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह थे, उनके सामने पेपर फाड़ के जिन्होंने बता दिया कि राजकुमार प्रधानमंत्री से, संविधान से, राष्ट्रपति से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है, उनका मुख दर्शन क्यों करेंगे? वो तो लोकतंत्र का महानायक है माननीय प्रधानमंत्री जी। सर, ये ऐसा लगता है कि शैतान का वेद पाठ, when devils can quote scripture for their own purpose। कलकत्ता में एक व्यक्ति था जो बोलता था, आमी चुरी करी, मद्यपान करी, बेश्याबाड़ीते हो जाई करी, किंतु आमी हमार कैरेक्टरटा ठीक करे रेखेছি। वो संविधान को पकड़ करके इतना बवंडर करने वाले संविधान का कितना बार हत्या किया, इसको सोचना चाहिए। और संविधान और लोकतंत्र, उनके मुंह में ये शब्द शोभा नहीं देता है। इसलिए ये बिल्कुल इस प्रसंग में विरोध करते हैं। क्यों? इसलिए विरोध करते हैं कि संविधान को विरोध करते हैं। डॉक्टर अंबेडकर का नाम लेकर के, उनको प्रणाम करके और संविधान निर्माताओं को प्रणाम करके राष्ट्रपति जी ने अपना भाषण शुरू किया। ये उनको सहन नहीं होता है, क्योंकि अंबेडकर दलित वर्ग से आते हैं और दलितों का अपमान करने वाले अंबेडकर को कितना बार अपमान किया, पराजित करने के लिए कितना दुष्चक्र किया, कितना दुष्कर्म किया। वो अंबेडकर का सम्मान माननीय मोदी जी ने ही किया। पंचतीर्थ का निर्माण हो, अंबेडकर का जन्म जयंती पालन हो, ये सब ये काम मोदी जी ने किया। ये उनको सहन नहीं होता है। सर, ये महाकुंभ के बारे में राष्ट्रपति जी ने उल्लेख किया। ये महाकुंभ हमारा सनातन आत्मा का, भारत का आत्मा का प्रतीक है। 144 साल बाद ये दुर्लभ महाकुंभ आया। सर, कुंभ मेला जैसा कि मिनी भारत का प्रतीक है। संपूर्ण विश्व का लोग इसमें आते हैं। विश्व का सबसे बड़ा मेला महाकुंभ न केवल एक मेला है, ये त्रिवेणी संगम पर, गंगा यमुना सरस्वती जी का संगम पर ये जो मेला होता है, ये संत गंगा, ज्ञान गंगा और अध्यात्म गंगा का त्रिवेणी भी सूक्ष्म रीति से इधर होता है। लाखों साधु संत, भिन्न भिन्न वर्ग के लोग, हर एक संप्रदाय के, शैव शाक्त गाणपत्य पंचरात्र वैखानस वेदांती, सर्व प्रकार का संप्रदायों का लोगों का समागम होता है। ज्ञान गंगा का निरंतर प्रवाह चलता है। सर, हमारा राष्ट्र एक सनातन राष्ट्र है। कोई सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी के द्वारा इसका आविर्भाव नहीं हुआ है। पतित पावनी गंगा जैसा हिमालय की गिरी गुफा से निकल करके कहां कल कल छल छल निनादिनी, कहां भीमकांत गर्जन में सारा धरित्री को प्रकंपित करते हुए वह पार्श्वस्थ भूमि को शीतलता, स्निग्धता, पवित्रता प्रदान करती आती है और अंत में सागर में पतित होती है। ऐसा हमारा सनातन राष्ट्र चिंतन, हमारा वैदिक सनातन ऋषियों की ध्यान से निकलता है और ये राष्ट्र सनातन है। ये राष्ट्र कभी प्राचीन नहीं होता है। ब्रजेंद्र नाथ सील महोदय ने लिखा है, इंडिया इज एवर एजिंग बट नेवर ओल्ड। ये प्राचीन है, परंतु आज भी हिमालय जैसा सनातन अनंत तारुण्य से अक्षय तेज में भारत माता विद्यमान है। सर, यह भारत का प्रतीक है हमारा कुंभ मेला। भारत का अध्यात्म का प्रतीक है, अतीत का गौरव का प्रतीक है, भारत का भविष्य का महिमामय चित्र इसमें समुद्भासित होता है। ये वही भारत है जो वैदिक ऋषियों से लेकर के ऋषि दयानंद तक, बुद्ध से लेकर के नागसेन तक, चैतन्य से चंद्रधर तक, महाराणा प्रताप से प्रतापादित्य तक और समर्थ स्वामी रामदास से रामकृष्ण विवेकानंद तक, राजा अश्वपति और अश्वघोष से श्री अरविंद तक, करोड़ों ऋषि मुनि साधु संत योद्धा राष्ट्र नायकों का पवित्र पदरज में पवित्र कर्त हुआ है। इस पावन भूमि को हम बंधन करते हैं। इसका बिंदु बिंदु भूमि यज्ञ भूमि है, लेकिन जिन्होंने इस भूमि को बेचा
जिन्होंने अपना स्वार्थ के लिए देश को तोड़ा, कोई राजनीतिक, भौगोलिक, अर्थनैतिक, सांस्कृतिक आधार पर नहीं है, सांप्रदायिक अधिकार पर जिन्होंने इस देश को तोड़ा, देश के साथ गद्दारी किया है, उन्होंने आज संविधान की बात करते हैं। इनका क्या अधिकार है? सर, हिंदुस्तान पाकिस्तान से भाग नहीं हुआ, बंटन हुआ। कच्चा तिलू, वीरुवादी, 3 बीघा किसने किया? एक ही खानदानी ने किया। सर, आज ये संविधान अखंडता की बात करते, देश को तोड़ने वाला देश जोड़ने का नाटक करते। ये नाटक जनता को भली भांति मालूम है।